Mercy and good morning, church. We are so happy to see you once again this week. और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आप सभी बहुत ही उत्साहित और खुश हैं आज की सुबह हमारे साथ संगति में जुड़ने के लिए। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की सेवकाई के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए ये समय हम कुछ देर आराधना में बिताएंगे और उसके बाद हम प्रभु के दासों से परमेश्वर के उत्साहित वचन को सुनेंगे। तो आइए चर्च, हम क्यों ना आराधना करने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। लगातार इसी तरह आपकी उपस्थिति, आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष हमारे जीवन में होने पाए लॉर्ड। और प्रभु जी, आज जहाँ कहीं से भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे प्रियजनों इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हर एक को प्रभु आप छुए और प्रभु जी आपकी आशीष हमारे जीवन में प्रभु आप दीजिए लॉर्ड। और प्रभु जी होने दीजिए इस सेवकाई के दौरान हम हर एक प्रभु आशीषित होने पाए और प्रभु जी आराधना के दौरान प्रभु छुटकारा, चंगाई आने पाए और प्रभु आपके वचन से हम तृप्त होने पाए और हम सभी को प्रभु आपकी उपस्थिति में मगन होने में आप सहायता करें। और आज की संपूर्ण समय को, आज की सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुशी आए जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में प्रभु। आए खुशी आए जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में प्रभु। आए खुशी आए जिंदगी, पाया ये जहां तुझ में प्रभु। आए खुशी आए जिंदगी, पाया
जीवन तू ही है जग की ज्योति तू जग से बढ़कर है दिल मेरा कहे दिल मेरा कहे दिल मेरा कहे दिल मेरा कहे है स्तुति हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु तू ही है
church, let's sing a new hallelujah to our King, to our Lord. Can you hear? There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Can you hear? There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Let us sing love to our nations. Let us sing love to the nations, bringing hope of the peace that has freed us, making known and making famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Whoa, arise, arise, let the church arise, let love reach to the other side. Oh, reach to the other side. Alive, come alive, let the strong India sings a new song. India sings a new song, reaching out with a new hallelujah. Every sons and every daughters, everyone sing a new hallelujah. Yeah. Come on, church, let's confess this for India. Sing India sings a new song. India sings a new song, reaching out with a new hallelujah. Every son and every daughter, everyone sing a new hallelujah. Yeah. Come on, church, arise, arise. Let the church arise. Oh, reach to the other side. Alive, come alive, let the song Church, wherever you are watching us from, sing a new praise this morning. Sing a new hallelujah to your Lord. Sing a new song to your King. From Jammu Kashmir to Kanyakumari, from Rajasthan to Arunachal Pradesh, in West Bengal, in Sikkim, wherever you are watching us from, sing a new song, sing a new hallelujah, and all the churches will rise and will say, arise. Let the church arise. Another song. The other side. Let the song arise.
other side. Alive, let's come alive. Come alive. Let the song rise. Amen. Everyone sing a new hallelujah. Everyone sing a new hallelujah. Come on, church. Confess it for your family. Confess it for yourself. Confess it for your family and your church. Everyone, let's sing a new hallelujah. Sing a new hallelujah for your place. Sing a new hallelujah for your church. Sing a new hallelujah for your ministries. Everyone sing a new hallelujah. Everyone sing a new hallelujah. आइए कलीसिया मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ में हाजिर है तू। हर हालातों में, हर बातों में तेरे लिए हाजिर है तू। तेरा नाम जब हम पुकारे, सामर्थ में हाजिर है तू। हर हालातों में, हर बातों में तेरे लिए
जगह है, सभी से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है। आइए कलीसिया मिलकर गाएं। दिखता नहीं पर तू हर जगह है, सभी से फलक तक हाजिर है तू। तू कल भी था, तू आज भी है, सदा से सदा तक हाजिर है तू। हाजिर है तू। यीशु Yes, Jesus. आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। कल, आज और सदा सर्वदा परमेश्वर एक समान है। कल भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, आज भी वो हमें नहीं छोड़ेंगे और कल भी वो हमें नहीं छोड़ेंगे। यीशु, हालेलुया। Jesus, yes Lord। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। हम कहीं भी क्यों ना हो, हमारे घरों पे आप हमारे साथ में हैं। आपकी महान उपस्थिति ने हमें घेरा हुआ है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन तक आपने हमें संभाले रखा है। कल के दिन आप हमारे साथ थे, आज के दिन आप हमारे साथ हैं और कल भी सदा सर्वदा तक आप हमारे साथ में रहेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। और इस समय कलीसिया मिलकर हम आपकी आराधना करते हैं। कलीसिया मिलकर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। कलीसिया मिलकर हम आपको सारा आदर, महिमा, प्रशंसा चढ़ाते हैं क्योंकि आप योग्य के परमेश्वर हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। इन जीसस नेम वी से आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें फिर से एक बार ये विश्राम दिन दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी जन अपने परिवार के साथ इस समय हमारे साथ प्रभु की आराधना करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए और विश्राम दिन में परमेश्वर से आशीष लेने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे प्रियजनों के लिए जिनका बर्थडे एनिवर्सरी इस सप्ताह पड़ता है। सो इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम उनके लिए एक आशीष के वचन को पढ़ना चाहेंगे। May the loving and good God bless you richly on your birthday and anniversary. We pray for you according to Jeremiah 17 verse 7 and 8. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river and will not fear when heat comes. But its leaf will be green and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. We wish you a very happy birthday and happy wedding anniversary. भला और प्रेमी परमेश्वर आपके जन्मदिन और शादी की सालगिरह के अवसर पर आपको ढेर सारी आशीष दे। हम आपके लिए इस वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो
और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यिर्मयाह 17 का 7 और 8। हमारी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी। आइए हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रियजनों के लिए प्रभु, जिन्हें पिछले साल आपने संभाला और उनके जीवन में ये नया साल आपने दिया है प्रभु। हम यिर्मयाह 17 का 7 और 8 के वचन के मुताबिक प्रभु, हम उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका आधार परमेश्वर स्वयं है। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है, जिसकी जड़ें गहराई में गई हुई है और धूप होने पर भी वो नहीं मुरझाता, सूखे मौसम में भी वो फलवंत होता रहता है। सच में परमेश्वर पिता, हम इस वचन के अनुसार हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक के जीवन का आधार, बुनियाद परमेश्वर आप स्वयं बने रहे प्रभु। आप हमारे प्रियजनों को सहायता करें कि वे हर समय आप पर भरोसा रख सके और अपने जीवन का बुनियाद, अपने जीवन का आधार आपको बना सके, ताकि परमेश्वर पिता उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आए प्रभु, उन परिस्थिति में भी प्रभु वे फलवंत बने रहे परमेश्वर पिता। उन परिस्थितियों में भी प्रभु होने दीजिए वे हमेशा हरा भरा रह सके प्रभु परमेश्वर पिता, और उनको प्रभु आपकी ओर से प्रभु वो शीतल जल प्राप्त होता रहे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हमेशा प्रभु उनका जीवन आनंद से प्रभु जी और आशीष से भरा हुआ होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उनके जीवन के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु। हम कलीसिया मिल करके प्रभु हमारे प्रियजनों के लिए आपके वचन के अनुसार आशीष की प्रार्थना हम कर पाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता ये समय के लिए। यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पास्टर और पूरी विक्ट्री फैमिली की ओर से आप सबको आपके बर्थडे एनिवर्सरी का बहुत बहुत बधाई। प्रभु आपको आशीष दे और यिर्मयाह 17 का 7 और 8 ये साल आपके जीवन में पूरा होने पाए। आइए हम उत्साह के वचन में जाएंगे। सो मैं आपके आगे भजन संगीता 68 का 19 और 20 को पढ़ना चाहूँगी। यहाँ इस प्रकार से कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। ये कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को हमेशा देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो प्रतिदिन आपको मुझको उत्साह देता है, प्रतिदिन अपने सच्चाई से हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा वो कार्य करता है। सो इसे मैं एम्प्लीफाइड वर्जन में मैं पढ़ना चाहूँगी। यहाँ कहता है, ब्लेसेड बी द लॉर्ड हु बियर्स our burdens and carries us day by day, even the God who is our salvation। कहता है कि परमेश्वर धन्य का है जो प्रतिदिन वो हमारे बोझ को उठाता है, लेता है और वो हमें संभाले रहता है प्रतिदिन। और कहता है कि वो हमारा उद्धार देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो दिन हमें मिला है ये परमेश्वर का अनुग्रह है,
और वचन कहता है कि प्रतिदिन वो हमारे बोझ को उठाता है, प्रतिदिन वो हमें संभाले रहता है। मेरे प्रिय हो, जब आप और हम अपने जीवन को देखते हैं तो कई ऐसे मौके हमारे जीवन में आए जहाँ पर हमें लग रहा था कि हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, कोई भी हमारे लिए सहारा नहीं है। लेकिन वो समय था जब परमेश्वर हमारे लिए सहारा बन करके हमें संभाले रखा हुआ वो समय था। मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होता और परमेश्वर हमें नहीं संभालते और हमारे बोझों को वो नहीं उठाता, प्रतिदिन हमारा केयर नहीं करता, तो शायद हो सकता था कि आज का दिन हमें न मिले। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उनको हम धन्य का कहते हैं कि प्रतिदिन वो हमारे बोझों को उठाता है, हमारे बोझों को हल्का करता है और वो हमें संभालता है। और नीचे कहता, 20 में कहता है, God is to us a God of deliverance and salvation, and to God the Lord belongs escape from death। कहता है कि परमेश्वर, वो परमेश्वर आपका मेरा छुटकारा देने वाला और उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर आपको मुझको छुटकारा देता है। हम किसी भी अवस्था में क्यों न हो, कोई भी बंधन जिसमें हम बंधे हो, लोगों को नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है कि मैं किस बंधन में हूँ। अगर सचमुच में हम परमेश्वर पर भरोसा रख करके, विश्वास करके जब हम उनको पुकारेंगे मेरे प्रिय हो, तो वो हमें छुटकारा देगा और वो हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते। और हिंदी में नीचे कहता है 20 का बी में कहता है, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया, इतना ही नहीं, वो हमारे बोझों को उठाता है, प्रतिदिन वो हमें संभालता है, हमारा केयर करता है, हमारा छुटकारा देता है, हमारा उद्धार करता है। उतना ही नहीं, बल्कि वो आपको मुझको मृत्यु से भी बचाता है। मेरे प्रिय हो, मैंने कुछ समय पहले हमारे परिवार की मैंने गवाही दी कि जब मेरा परिवार, पूरा परिवार, हम कोविड से ग्रस्त थे, मैं और मेरा हस्बैंड, हम ऐसे अवस्था में पहुंच गए थे कि कल का दिन हम देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने की वजह से उन्होंने हमें मृत्यु से छुड़ाया और आज के दिन तक उन्होंने हमें चंगाई दे करके मुझे, मेरे परिवार को उन्होंने संभाला। मेरे प्रिय हो, सच में प्रभु जो अपने वचन में प्रतिज्ञा करता है, ये प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। मेरे प्रिय हो, सो मैं आज की सुबह आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आइए हम अपने जीवन के बुनियाद को हम परमेश्वर को बनाएं, हम उन पर भरोसा रखें और हम उन पर आशा रखें। मेरे प्रिय हो, और हम प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन का बोझ आप ले लीजिए, क्योंकि वो हमें सहायता करना चाहते हैं, वो हमें संभालना चाहते हैं और वो हमें हमारे बोझों से हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं, बंधनों से स्वतंत्र करना चाहते हैं, वो हमें उद्धार देना चाहते हैं और वो हमें बचा करके, वो बचाना हमें चाहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो हमें मृत्यु से भी वो हमें बचाना चाहते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद हो ये समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते ये सुंदर विश्राम दिन के लिए। प्रभु, आपका वचन कहता है कि प्रति भोर आपकी करुणा हमारे लिए नई होती है, जिसकी वजह से प्रभु हम प्रतिदिन प्रभु नए दिन को देखते हुए प्रवेश करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस विश्राम दिन के लिए। प्रभु विशेषकर हम इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दीजिए प्रभु, हम हर एक जन प्रभु आज की सुबह जितने जन प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हम हर एक को आप सहायता करें कि हम अपने बोझ को, अपने चिंताओं को हम आपको दे सके, क्योंकि वचन कहता है कि प्रतिदिन
दिन आप हमारे बोझों को लेते हैं, हमें संभालते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आप हमें सहायता करें प्रभु कि हम प्रभु अपने बोझों को आपको दे सके प्रभु, और परमेश्वर आपके उस उद्धार को, आपके उस छुटकारे को हम अपने जीवन में देख सके, क्योंकि परमेश्वर आप ही है जो हमें छुटकारा दे सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं। उतना ही नहीं प्रभु, आप हमें प्रभु जी मृत्यु से आप हमें बचाते हैं, अधोलोक में जाने से आप हमें बचाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर दिन के लिए प्रभु, और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता प्रभु, हम सभी जन प्रभु इस समय अपने 10वां अंशों को, भेंटों को प्रभु हम आपके भवन में लाते हैं पिता। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि होने दीजिए ये भेंट, ये 10वां अंश प्रभु आपके भंडार में प्रभु रह सके प्रभु, और इसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु। और हमारा 10वां अंश प्रभु जी हमारी भेंट है प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे जीवन के लिए प्रभु एक प्रभु बीज बन सके प्रभु। और साथ ही प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, पूरे प्रभु आपके लोगों को प्रभु आप बहुतायत की आशीष दे प्रभु, उनके लिए द्वारों को आप खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वे आपके उस महान आशीष को प्रभु अपने जीवन में देख सके प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता ये सुंदर दिन के लिए, यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए चर्च, ये समय है परमेश्वर का जीवित वचन का। तो हम हमारे सीनियर पास्टर को, रेवरेंड डैनियल लेप्चा को हम ताली से स्वागत करेंगे। Praise the Lord, my brothers and sisters. प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, We are so happy to be back with you this morning. और आज की सुबह हम आपके आगे उपस्थित होने में बहुत You know our आनंदित God हैं। is good God. आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भला And the है, Bible says, और बाइबल कहती है yesterday, today, forever, Jesus Christ is the same. कल, आज और युगानुयुग यीशु मसीह हमेशा Our एक God is है। unchanging God. हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, Even today, the Lord Jesus Christ is with us और आज भी यीशु मसीह हमारे साथ है, because He loves us. He wants to bless us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमें आशीष देना चाहते हैं। And God gives us His word. और परमेश्वर अपने वचन को हमें देता है, He gives us understanding of His word. और वो अपने वचन की समझ को हमें देता Because the है, word of God is the key to all our blessings. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे सारे आशीष की कुंजी है। And let us open our hearts to hear the word of God this morning. और आज की सुबह हम अपने हृदय को खोले उसके वचन को सुनने के लिए। I believe you have brought your Bible. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने बाइबल के साथ हैं, Even the scriptures are on your screen. और वचन यद्यपि आपके स्क्रीन में होगा, But it's always good to open your own Bible पर ये हमेशा अच्छा होता है कि हम अपने बाइबल को खोलें and make some notes और हम नोट्स को ले, so you can go back to the word of God again, the message you hear. कि आप वापस जो संदेश हमने सुना है उसको आप देख सके। That's how we grow in the Lord. और ऐसे हम प्रभु में बढ़ते हैं। Let's go into the word of God this morning. आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन Before में that, we जाएं। want to have a small word of prayer. और इससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Shall you pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, we pray. परमेश्वर पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना को करते हैं। Take this entire message time into your hand. और ये पूरी संदेश के समय को आपके हाथ में ले ले। You have been with us all through the service from the beginning. और आज पूरी सभा की शुरुआत से आप हमारे साथ हैं। Thank you for the wonderful worship team. और धन्यवाद सुंदर आराधना के दल के लिए। Thank you for the anointing over your children. और धन्यवाद आपकी अभिषेक अपने बच्चों के Thank you for ऊपर। the wonderful facility that you have blessed us with. और धन्यवाद देते हैं ये सुंदर फैसिलिटी के लिए जो आपने हमें दिया Thank you for है। all the equipment you have blessed us with. और धन्यवाद सारे इन इक्विपमेंट्स के लिए जिससे आपने हमें आशीष दी Lord, we है। thank you for all my children, Father God, such a gifted, Father God, people you have blessed us with. और पिता मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी बच्चों के लिए। और पिता आपने हमें दान से भरे हुए बच्चे से आशीष दिया And today है। the song that we sang and the music that we played for you, और जो गाना हमने गाया और जो धुन हमने बजाए वो आपके लिए है। Lord,
you have been blessed today. आज आप आशीषित हुए हैं। Thank you, dear Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you for the word of exhortation that your maidservant brought. और जो उत्साह के वचन आपकी दासी ने लेकर आई। Thank you, Father God, for your maidservant's life. और धन्यवाद आपकी दासी के जीवन के लिए। Lord, she has been such a blessing to your entire church here. और वो पूरी कलीसिया के लिए एक आशीष के कारण है। You have made her a mother to so many spiritual children. और आपने उन्हें बहुत सारे आत्मिक बच्चों की माँ बनाया है। Bless her continuously. आप उन्हें आशीष दे। Use her more and more. और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। And thank you for the wonderful opportunity to bring the word of God to our brother, sister. और धन्यवाद इस बहुत सुंदर मौका के लिए जब हम आपके वचन को आपके बच्चों तक Holy पहुंचा पा रहे Spirit, you हैं। take over. पवित्र आत्मा आप समय को ले ले। Help us, Holy Spirit. हमें सहायता करे पवित्र Because this is your आत्मा। word, O Lord. क्योंकि ये आपका वचन है। Help us to hear your voice, Lord, as we hear your word. सहायता करे कि हम आपकी आवाज को सुन सके जैसे हम आपके वचन को सुनते In हैं। Jesus' name we ask this prayer. यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's go to the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। Let's turn our Bible आइए हम अपने बाइबल को खोलें। to Ezekiel 37. यिर्मयाह 37 पर। And we will read from 1 to 10. और हम 1 से 10 तक पढ़ेंगे। Shall we? आइए हम पढ़ें। The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, Prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you, and bring flesh upon you, cover you with the skin, and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Also he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, Son of man, and say to the breath, Thus saith the Lord God, Come from the four winds, O breath, and breath on this slain, that they may live. Verse 10. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived, and stood upon their feet, an exceedingly great army. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चराऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा, और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चरा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गए, परंतु उनमें सांस कुछ न थी।
तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घाट किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। Hallelujah. हालेलुया। The quickening power of the word and the spirit. जीवित करने वाले वचन और आत्मा की सामर्थ। This is the title of today's message. और ये आज का संदेश का शीर्षक है। God gave this vision to Ezekiel और परमेश्वर ने ये दर्शन एजेकियल को दिया when God's very own people were living in exile. जब परमेश्वर के अपने ही लोग बंधुआई में रह रहे थे। They were scattered from their own land. वो अपनी ही भूमि से तितर बितर हो गए। And in this vision और इस दर्शन में that God showed to Ezekiel, जो परमेश्वर ने एजेकियल को दिखाया, we see the condition of God's very own people, हम परमेश्वर के अपने ही लोग की दशा को देखते हैं, the Israelites. इजराइलियों के। When we read Ezekiel 37 verse 11, it says here, जब हम एजेकियल 37 का 11 को पढ़ते हैं, then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। So this was the condition of God's very own people. और ये परमेश्वर के अपने ही लोग की दशा थी। They were in utter despair. वे पूरी तरह निराशा में थे। God gives them, the message, परमेश्वर उन्हें संदेश देता है, the message of hope, restoration and life. और वो आशा, पुनर्स्थापना और जीवन का संदेश को देता है। Hallelujah. हालेलुया। Brother, sister, मेरे भाई और बहनों, God is so loving. परमेश्वर इतना प्रेमी He है is so forgiving. और वो क्षमाशील का है। When his own people, the Israelites, were in such situations, और जब उसके अपने लोग ऐसे स्थिति में थे, इजरायली, God gives them the message of hope, restoration and life. और परमेश्वर उन्हें आशा, पुनर्स्थापना और जीवन का संदेश देता है। But let me tell you, पर मैं आपको बताऊं, why were they in bondage वो क्यों बंधन में थे and in hopeless situation? और आशाजनक स्थिति में थे? Because of their own rebelliousness. वो अपने ही विद्रोह होने के कारण, Or in a way we can say they chose to be in such circumstance. या फिर हम कह सकते हैं कि उस स्थिति में होने का चुनाव उन्हें खुद किया। They chose to go to the bondage. और उन्होंने चुना कि वो बंधन में जाए। If you read in 2 Chronicles 36, 15 to 19, अगर आप दूसरा इतिहास 36 का 15 से 19 तक पढ़ेंगे, the Lord, the God of the ancestors, sent word to them through his messengers again and again, because he had pity on his people and on his dwelling place. But they mocked God's messengers, despised his words, and scoffed at his prophets, until the wrath of the Lord was aroused against his people, and there was no remedy. He brought up against them the king of the Babylonians, who killed their young men with the sword in the sanctuary, and did not spare young men or young women, the elderly or the infirm. God gave them all into the hands of Nebuchadnezzar. He carried to Babylon all the articles from the temple of God, both large and small, and the treasures of the Lord's temple, and the treasures of the king and his officials. They set fire to God's temple and broke down the walls of Jerusalem. They burned all the palaces and destroyed everything of value there. और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा,
क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि वचन का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जीवनों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बुरे, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। और क्या छोटे, क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वो बाबेल में ले गया। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। When we read these scriptures here, और जब हम इन वचनों को यहाँ पढ़ते हैं, we see how God's very own people dealt with the messenger, with the prophet that God sent to them with His word. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के अपने ही लोग उन नबियों के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं। How they tried the patience of God. कैसे उन्होंने परमेश्वर की धैर्य का जांच किया। And this didn't happen just 1 year or 2 years. और ये केवल 1-2 साल के लिए नहीं हुआ। Hundreds of years God waited for them to repent and return to Him. और बहुत साल तक परमेश्वर ने इंतजार किया कि वो पश्चाताप करके फिर से मुड़ जाएंगे। Bible says in Romans 2 verse 4. और बाइबल रोमियो 2:4 में ऐसा Or do you despise the riches of His goodness, forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? But the children of Israelites, they despised God's love, God's patience, God's long suffering. पर परमेश्वर के बच्चे जो इजरायली थे, उन्होंने परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता, धीरज को उन्होंने तुच्छ जाना। So what happened? तो क्या हुआ? God handed them over to the Babylonians. तो परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन के हाथ में सौंप दिया। And King Nebuchadnezzar of Babylon took them to his land, to Babylon. और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उन्हें लेकर वो अपने बेबीलोन शहर में उन्हें लेकर गया। And now they are crying. और अब वो रो रहे हैं। What were they saying? वो क्या कह रहे थे? We read in Ezekiel 37 verse 11. और हमने इसे एजेकियल 37:11 में पढ़ा। Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। You know, they were saying we are in utter hopelessness. और वो कह रहे थे कि हम बहुत ही आशा रहित स्थिति में हैं। We have been cut off from our own land, from our God. हम तो अपने ही परमेश्वर, अपने भूमि से हम पूरी तरह कट गए हैं। But we know the story. पर हम उनकी कहानी को जानते हैं। Because they rebel against God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध विद्रोह किया। And yet God has mercy on them. पर फिर भी परमेश्वर उन पर कृपा करता है। And this word is applicable for us as well. अब ये कहानी हम पर भी ये लागू करती है। You know, those people, the Israelites, they needed the quickening power of the word of God and of the Spirit of God. और ये इजराइलियों को परमेश्वर के जीवित करने वाले वचन और आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता थी। To revive them. कि उन्हें फिर से पुनर्स्थापना करे। To restore them. और उन्हें फिर से स्थापना करे। To deliver them. उन्हें छुटकारा दे। To heal them. उन्हें चंगाई दे।
And even for us, और हमारे लिए भी even today, we need the same quickening power of the Word of God and of the Spirit of God. और आज हमें भी परमेश्वर के जीवित करने वाले वचन और आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। Today, many of us are living in the same situation like that of Israelites. और आज भी हम इजरायली जैसे ही परिस्थिति में हम जी रहे हैं। Even many of us are feeling we are cut off. और हम में से बहुतों को ऐसा लगता है कि हम भी कट गए हैं। We feel that we are living in the utter desperate situation. और हम में से बहुतों को ऐसा लगता है कि हम भी बहुत ही आशा रहित स्थिति में जी रहे हैं। But today I come here to tell you there is hope for you, hope But- for us. पर आज मैं आपके आगे आया हूँ ये कहने के लिए आपके और मेरे लिए आशा है। Because God sent the message of hope and restoration and life to us. क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आशा पुनर्स्थापना और जीवन का संदेश हमें दिया है। God is gracious and loving. परमेश्वर अनुग्रहकारी और प्रेमी है। Do you know the character of God? क्या आप परमेश्वर के चरित्र को क्या आप जानते हैं? He is gracious God. वो तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He is forgiving God. वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Even though we have sinned against God, अगर हमने परमेश्वर के विरोध में पाप भी किया है, we have rebelled against God. हमने परमेश्वर के विरोध विद्रोह किया है, We have forgotten His precepts. और हमने उसके वचनों को हम भूल गए हैं, Yet He wants to show us mercy तो भी वो अपने अनुग्रह कृपा को हमें दिखाना चाहता है, by bringing us restoration. हमें पुनर्स्थापित करने के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Let's read Ezekiel 37:12-14. आइए हम एजेकिएल 37 का 12 से 14 तक पढ़े। It says here, और ये ऐसा लिखा है, therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up from the graves. I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे नीच देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। God is giving us all one more chance. परमेश्वर हम सभी को एक और समय को वो दे रहा है। He wants to revive us again. वो हमें फिर से जीवित करना चाहता है। He wants to heal us again. वो हमें फिर से चंगाई वो देना चाहता है। Where are you, my brother, sister? आप कहाँ हैं मेरे भाई और बहनों? How are you living, my brother, sister? आप कैसे जी रहे हैं मेरे भाई और Do you बहनों? also say like Israelite that we are like a dry bones? क्या आप इजरायलियों की तरह कह रहे हैं कि मैं तो सूखी हड्डी हूँ, I have no hope. मेरे पास कोई आशा नहीं I है, am completely cut off. मैं तो पूरी रीति से कट गया हूँ, I don't see any future before me. मैं अपने आगे कोई भी भविष्य को नहीं देख रहा। But just now you heard the word of God from Ezekiel 37. पर अभी आपने यिर्मयाह 37 से वचन को पढ़ा, And this is prophetic word for you. और ये आपके लिए भविष्यवाणी का वचन है। Today, if you look up to Jesus, अगर आज आप यीशु को देखेंगे, the Lord wants to bring healing to you. प्रभु आप में चंगाई को लाना चाहता The है। Lord wants to deliver you. परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता The Lord है। wants to restore you. परमेश्वर आपको पुनर्स्थापना करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। God wants to fill you with the Holy Spirit. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। Oh, glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Through the quickening power of the Word of God and His Holy Spirit, जीवित करने वाले वचन और आत्मा की सामर्थ के द्वारा
God will do His work in our life. परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Ezekiel was commanded to prophesy and proclaim God's quickening word to the dry bones. और एजेकियल को आज्ञा दी गई थी कि वो परमेश्वर के जीवित करने वाले वचन को भविष्यवाणी और घोषणा करे उन सूखी हड्डियों के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। Because those dry bones must hear the word of God. क्योंकि उन सूखी हड्डियों को परमेश्वर के वचन को सुनना था। So is the case of yours and mine, my brother, sister. और आज ऐसे ही दशा हमारी भी है मेरे भाई और बहनों। You and I also need to hear the word of God. आपको और मुझे भी परमेश्वर के वचन को सुनना है। Because the word of God has the quickening power of God in it. क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो जीवित करने वाला सामर्थ है। And there is quickening power of the Holy Spirit. और उसमें वो जीवित करने वाली आत्मा में सामर्थ है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। God raised up Ezekiel और परमेश्वर ने एजेकियल को उठाया and sent him with the prophetic word, और भविष्यवाणी के वचन के साथ भेजता है, commanding him to go and prophesy to the dry bones. और आज्ञा देता है कि उन सूखी हड्डियों में वो भविष्यवाणी करे। Let me tell you today, मैं आज आपको बताऊं, today you and I need to hear the quickening, the word of God, which is the quickening power. और आज हमें परमेश्वर के वो जीवित करने वाले वचन को सुनना है जिसमें जीवन देने वाली सामर्थ है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति The हो। Holy Spirit quickens life and brings changes in our situation. और पवित्र आत्मा हमें जीवन को वो देता है और हमारी परिस्थितियों को वो बदलता है। When we declare the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Unless and until we declare the word of God. और जब तक हम परमेश्वर के वचन का घोषणा नहीं करते, The word of God needs to be declared over our life. परमेश्वर के वचन की घोषणा हमारे जीवन में होना है। Because there is the quickening power of the word of God and of the Holy Spirit. उसमें जीवित करने वाले वचन और आत्मा की सामर्थ है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। See, when Ezekiel prophesied the word of God, जब एजेकियल ने परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी की, when Ezekiel spoke the word of God as he was commanded by God, और जैसे एजेकियल को आज्ञा दिया गया था उसके अनुसार जब उसने वचन को बोला, see, he was speaking the very word that had the quickening power and the Spirit of God in it. और वो वही वचन को बोल रहा था जिसमें जीवित करने वाली सामर्थ थी, जिसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। It's very important for us to release the word of God. और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को हम स्वतंत्र करें। Because unless until we speak the word of God, nothing will happen. क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूं। Recently I was hearing the great man of God. और हाल ही में एक परमेश्वर के महान दास को सुन रहा था। And he illustrated this subject through this verse. और उन्होंने एक उदाहरण देकर इसे समझाया परमेश्वर के वचन के अनुसार। It's in Genesis 1:1-3. और ये उत्पत्ति 1 से 3 में है। It says here, और यहाँ ऐसा लिखा है, you listen carefully. ध्यान से सुने। In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। And verse 3 says, और 3 में लिखा है, Then God said, Let there be light, and there was light. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। Here we see very interesting thing. और यहाँ पर हम एक बहुत दिलचस्प चीज को देखते हैं। Bible says, बाइबल कहती है, In the beginning God created heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And then verse 2 says, और 2 वचन में लिखा है, The earth was without form. और पृथ्वी बेडोल थी।
Because, it is understood that between verse 1 and 2, there is vast gap. और ऐसा समझा गया है कि 1 और 2 आयत के बीच में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा वहाँ पे गैप है. And then it says, the earth was without form and void. और यहाँ लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी. And the darkness was on the face of the deep. और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. Now listen, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था. And then verse 3 is very important now to notice. और तीसरा आयत बहुत ही इसको हमें ध्यान से देखना है. Then God said, let there be light, and there was light. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया. And then we see one after another, God kept on creating by His spoken word the whole universe. और हम पढ़ते जाते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पूरे इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता है. Everything came to existence by His spoken word. और हर चीज का सृष्टि हुआ उसके कहे हुए वचन के द्वारा. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. But between verse 2 and 3, पर 2 और 3 के बीच, in verse 2 it says, 2 में लिखा है, the Spirit of God was hovering over the waters. परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था. That means over this world, the entire world that God created, the Spirit of God was there. और हम देखते हैं कि ये पूरे संसार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था. For how many years? कितने सालों तक? Millions of years. बहुत सारे सालों तक. But there was nothing happening. पर वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था. The earth was formless and void. और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी. Darkness was on the face of the deep. और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. And the Spirit of God, the Holy Spirit, was hovering over the face of the water. और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था. That was the scene for millions of years. और ये दृश्य बहुत सालों तक ऐसा ही था. Until God spoke the word. जब तक परमेश्वर ने अपने वचन को कहा. When God spoke the word, जब परमेश्वर ने वचन को कहा, everything came into existence. तो हर चीज की वहां पर सृष्टि हुई. Let there be light. और उजाला हो. And there was light. तो उजाला हो गया. And God kept on creating the whole universe. और ऐसे ही परमेश्वर ने पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की. So this shows, there is quickening power in the word of God. और ये दिखाता है वो जीवित करने वाले वचन की शक्ति जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Unless we speak the quickening word of God, nothing will happen. और जब तक हम परमेश्वर के वो जीवित करने वाले वचन को नहीं बोलते तब तक कुछ नहीं होगा. The quickening Spirit of God is waiting for God's people to declare His word in faith. जीवित करने वाली प्रभु की आत्मा इंतजार कर रहे हैं कि कब परमेश्वर के लोग उसके वचन को विश्वास के साथ घोषणा करेंगे. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. Today, my brother, sister, you as a child of God, आज मेरे भाई और बहनों परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, as a born again child of God, एक नया जन्म पाया हुआ बच्चे होने के नाते, God given the word of God which has got the quickening power. परमेश्वर ने हमें अपने वचन को दिया है जिसमें जीवित करने वाली वो सामर्थ है. And when we release the word of God, that is a quickening power. और जब हम परमेश्वर के वचन को स्वतंत्र करते हैं जिसमें जीवित करने वाली सामर्थ है, then the quickening power of the Holy Spirit starts working. और तब वो जीवित करने वाली पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पे कार्य करने लगती है. So, speaking the word of God, prophesying the word of God, declaring the word of God, proclaiming the word of God is very important for us as God's children. और इसीलिए परमेश्वर के वचन को घोषणा करना, उसे बोलना, अंगीकार करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. Let's read Matthew 21 to 22. आइए हम मत्ती 21 का 21 और 22 को पढ़े. So Jesus answered and said to them, "Surely I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed
and be cast into the sea, it will be done. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, तो यह हो जाएगा। और जो Hallelujah. कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। Jesus said, यीशु ने कहा, but also if you say to this mountain, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे, if you say to this mountain, यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, hallelujah, हालेलुया, then this mountain will obey you. तो ये पहाड़ भी तुम्हारे आज्ञा को वो पालन करेगा। Can you see the power in the declared word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन की घोषणा कई गई सामर्थ को क्या आप समझ रहे हैं? God commanded Ezekiel to prophesy over the dry bones. परमेश्वर ने एजेकियल को आज्ञा दी कि वो सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करे। Now many believers have a problem और कई विश्वासियों की ये समस्या होती है, because they say, oh, I'm not a prophet, वो कहते हैं कि मैं एक नबी नहीं हूँ, I'm not a prophetess, या फिर मैं एक भविष्यवाणी करने वाली स्त्री नहीं हूँ। I don't know whether I have gift of prophecy, मुझे नहीं पता कि क्या मेरे पास भविष्यवाणी का दान है या I've नहीं। never prophesied before. मैंने कभी भी भविष्यवाणी पहले नहीं किया है। How can I prophesy? मैं कैसे भविष्यवाणी करूं? How can I prophesy over my situation? मैं अपनी परिस्थिति के ऊपर कैसे भविष्यवाणी करूं? Here we need to understand what is prophecy. और अब यहाँ पे हमें समझना है कि भविष्यवाणी क्या है। Glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। If you read Revelation 19 verse 10, अगर आप प्रकाशित वाक्य 19 का 10 को पढ़ेंगे, I'm reading from the Living Bible. और मैं इसे लिविंग बाइबल से पढ़ रहा हूँ। Then I fell down at his feet to worship him. But he said, no, don't. For I am a servant of God just as you are, and as your brother Christians are, who testify of their faith in Jesus. Worship God. The purpose of all prophecy and of all I have shown you is to tell about Jesus. तब मैं उसके चरणों में गिरकर उसकी आराधना उपासना करने लगा, परंतु उसने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही तरह परमेश्वर का दास हूँ और तुम्हारे भाई मसीही के जैसा हूँ, जो यीशु में अपने विश्वास की गवाही देते हैं। केवल परमेश्वर की आराधना करो, और जो भविष्यवाणी का उद्देश्य है और जो मैंने तुम्हें दिखाया है वो परमेश्वर के बारे में बताना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And in NKJV, I am reading the last portion of the verse. और NKJV से मैं इस आयत का आखिरी भाग को पढ़ रहा हूँ। For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। Are you seeing something here? क्या आप कुछ यहाँ देख रहे हैं? Don't tell, I have never prophesied before. आप ये ना कहे कि मैंने कभी पहले भविष्यवाणी नहीं किया है। The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। Every written word of God is the word of prophecy. और हर कोई परमेश्वर का लिखा हुआ वचन ये भविष्यवाणी का वचन है। When you share your testimony about Jesus, जब आप यीशु की गवाही को जब आप बोलते हैं, you are prophesying. आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। You know what is prophecy? भविष्यवाणी क्या है? Revealing the mind of God. ये है परमेश्वर के मन को बताना। Now how do you know the mind of God? तो आप कैसे परमेश्वर के मन को जानते हैं? You know what Bible says? आपको पता है बाइबल क्या कहती है? Paul says, पौलुस ने क्या we कहा? have the mind of Christ. हम में परमेश्वर का मन है। When you live in close intimacy with God, जब आप परमेश्वर के साथ वो घनिष्ठ संबंध में जीते हैं, when your mind is renewed with the truth of the word of God, जब आपका मन का परमेश्वर के वचन के सच्चाई से नवीनीकरण होता है, when you are spirit filled believer, जब आप आत्मा से भरे हुए विश्वासी हैं, oh, you prophesy तो आप भविष्यवाणी करते हैं, because you are led by the Holy Spirit. क्योंकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। Bible says, बाइबल कहती है, those who are led by the Spirit of God are the children of God. जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं।
Oh, you can prophesy, you can proclaim the word of God. हाँ, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकते हैं। Let's read Ezekiel 37:7 and 8. आइए हम एजेकियल 37 का 7 को पढ़े। So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चरा और वे ऊपर चमड़े से ढप गए परंतु उनमें सांस कुछ न थी। This shows what kind of believer we are, ये दिखाता है कि हम किस तरीके के विश्वासी हैं or what kind of church we are. या फिर हम कैसे कलीसिया है। It says here, और यहाँ ऐसा लिखा है but there was no breath in them. पर उनमें सांस ना थी। Today there are many believers, और आज ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, even churches. कलीसियाएं भी। Yes, they become believer, हाँ, वो विश्वासी हो जाते हैं, Christians, मसीही, baptized. और वो बपतिस्मा भी लेते हैं Even they become a church. और वो कलीसिया भी बन जाते हैं People start gathering as a church. और लोग कलीसिया में वो इकट्ठे होने लगते हैं। But just like this here, पर जैसा हमने यहाँ पढ़ा, no more dry bones. हाँ, वो सूखी हड्डियाँ अब नहीं है। Now they have sinews, they have flesh, they have skin. अब उनमें नसें हैं, उनमें मांस है, उनमें चमड़े भी हैं। They look good, वो अच्छे दिखते हैं but they are dead. पर वो मरे हुए हैं। They are dead. वो मरे हुए हैं। Why? क्यों? Because there's no spirit in them. क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है, There's no breath in them. उनमें सांस नहीं है। How are we today? आज हम कैसे हैं? We say we are alive. हम कहते हैं कि हम जीवित हैं। Yes, I'm a believer. मैं विश्वासी हूँ। We are a church. हम कलीसिया हैं। Is the breath of God is there? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का सांस है? Is there spirit of God amongst us? क्या हमारे बीच परमेश्वर का आत्मा है? Hallelujah. हालेलुया। When there is spirit of God, जब वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा होता है, then when you release the word of God, और जब आप परमेश्वर की वचन को वहाँ स्वतंत्र करते हैं, miracle happens over there. तो वहाँ पे आश्चर्य कर्म होता है। That's what God wants. और यही परमेश्वर चाहता है। When the dry bones were together, और जब ये सूखी हड्डियां एक साथ थी, they had sinew, they had flesh, they had skin, और उनमें नसें, मांस और चमड़े थे, but they had no breath in them. पर उनमें सांस ना थी। Let's read Ezekiel 37:9 and 10. आइए हम एजेकियल 37 का 9 और 10 को पढ़े। Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breath on this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घाट किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You and I, as a born again believer, आप और मैं जो नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, you and I need to be filled with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भरा जाना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If you read the Acts of the Apostles, अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे, the apostles were very particular about this subject. और प्रेरित इस सब्जेक्ट के बारे में उसमें वो बहुत ज्यादा ध्यान देते Because थे। without the Holy Spirit, you cannot experience the power of God in your life, through your life. क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा आप अनुभव नहीं कर सकते।
Why do we need the Holy Spirit? हमें क्यों पवित्र आत्मा की जरूरत है? Just to speak in tongues? केवल अन्य भाषा में बोलने के लिए? Just to showcase our gifts? केवल हमारे दान वरदानों को दिखाने के लिए? No. नहीं। What did Jesus say in Acts 1:8? पर यीशु ने प्रेरित के 1:8 में क्या कहा? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। You see, the dry bones were there. हाँ, हम यहाँ देखते हैं कि सूखी हड्डियाँ थी। God took Ezekiel to the valley which was full of dry bones. और परमेश्वर एजेकियल को वो घाटी में लेकर जाता है जहाँ पे चारों ओर सूखी हड्डियाँ But थी। Ezekiel goes with the word of God. पर एजेकियल परमेश्वर के वचन के साथ जाता है। And today we have been given the word of God, the gospel. और आज हमें परमेश्वर का वचन जो सुसमाचार है वो दिया गया है। Just like Ezekiel, today we have to prophesy, we have to declare the word of God to our dry bones. और एजेकियल की तरह आज हमें परमेश्वर के वचन को हमारी सूखी हड्डियों में हमें घोषणा करना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And when Ezekiel prophesied the word of God, declared the word of God to the dry bones. और जब एजेकियल ने उस सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी और परमेश्वर के वचन को घोषणा किया, What happened? क्या हुआ? The dry bones become an exceedingly great army of God. तो वो सूखी हड्डियां एक बहुत बड़ी सेना हो गई। Because when Ezekiel released the word which has the quickening power of the word and of the spirit, क्योंकि एजेकियल ने परमेश्वर के वचन को स्वतंत्र किया जिसमें जीवित करने वाली वचन और आत्मा की सामर्थ्य थी। praise the Lord. प्रभु की स्तुति Today हो। you and I, when we are filled with the Holy Spirit, जब आज आप और मैं जब पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, you can release the same word. तो आप वही वचन को आप स्वतंत्र कर सकते हैं। The word of God which has the quickening power. और परमेश्वर का वचन जिसमें जीवित करने वाली सामर्थ है। And until we speak the word और जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते in faith विश्वास में and with the anointing, और अभिषेक में, the dry bones will not live. तो वो सूखी हड्डियां जीवित नहीं होगी। Even though we speak to a situation, it will not change. यद्यपि हम अपने परिस्थितियों में बोलेंगे फिर भी वो नहीं बदलेगी। We need the quickening power of the word of God and also the quickening power of the Holy Spirit. हमें वो जीवित करने वाली वचन और जीवित करने वाली आत्मा की सामर्थ चाहिए। Today we are surrounded by dry bones. और आज हम वो सूखी हड्डियां से हम घिरे हुए हैं। Today probably we may have to speak to our own people. और आज हो सकता है कि हमें लोगों के ऊपर इसे बोलना है। And when our own church revive, और जैसे हमारी खुद की कलीसिया जब हम वापस पुनर्स्थापना होते हैं, when our own people are revived, जब हमारे खुद के लोग जब जाग जाते हैं, when they are restored to their spiritual life, और जब अपने आत्मिक जीवन में वो पुनर्स्थापना होते हैं, what happens? क्या होता है? We as a church, as a whole, तो हम एक कलीसिया के रूप में एक साथ, we will prophesy to the other dry bones. तो हम दूसरे सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करेंगे। God expecting us to speak to the dry bones. परमेश्वर ये उम्मीद करता है कि हम सूखी हड्डियों के ऊपर हम बोले। Many a time God takes you to the valley which is full of dry bones. और बहुत बार परमेश्वर हमें उस घाटी में लेकर जाता है जहाँ पे बहुत सारे सूखी हड्डियां हैं। What does it mean? इसका क्या मतलब है? People who are living in hopelessness. जो लोग जो आशा रहित स्थिति में जी रहे हैं, People who are living without God. और जो लोग परमेश्वर के बिना जी रहे हैं, They are in great need of hearing the good news of Jesus. और वो बड़ी आवश्यकता में है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुने। They are in need of our prayer and intercession. और उन्हें हमारी प्रार्थना और अंतर्बिंदी की जरूरत है। That's why God takes you and me to those valleys, my brother, sister. और इसीलिए परमेश्वर हमें उन घाटियों में लेकर जाता है। But no use going to the valleys without being equipped
with the word and with the Holy Spirit. पर अगर हम परमेश्वर के वचन और आत्मा से नहीं भरे गए हैं तो उस घाटी में जाने का कोई भी अर्थ नहीं है। That's what Jesus said in Luke. और यही यीशु ने लूका में कहा, Tarry here, wait here, यहीं पर रुको, इंतजार करो, till you are filled with the Holy Spirit. जब तक तुम पवित्र आत्मा से भरे नहीं जाते। Even though all those apostles were with Jesus for 3.5 years, यद्यपि वो सारे प्रेरित यीशु के साथ वो साढ़े 3 साल तक थे, they learned the word of God. उन्होंने परमेश्वर के वचन को सीखा था, They had many experiences with the Lord Jesus, और यीशु के साथ उनका अनुभव था, but they had not received the Holy Spirit yet. पर अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। Jesus said, wait here. यीशु कहते हैं कि इंतजार करो, Don't start ministry. अभी ही सेवकाई को शुरू मत You करो, cannot do the ministry now. तुम अभी सेवकाई को नहीं कर सकते, Because preaching of the word of God is of the Holy Spirit. क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है वो आत्मा से है। Wait till you are filled with the Holy Spirit. तब तक इंतजार करो जब तक तुम पवित्र आत्मा से नहीं भरे And जाते, when the Holy Spirit comes on you, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा you will receive power. तब तुम सामर्थ को पाओगे, That power is the quickening power of the Holy Spirit. और वो सामर्थ परमेश्वर का जीवित करने वाला सामर्थ है। When you're quickened with the power of the Holy Spirit, जब आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब आप जीवित किए गए जाते हैं, praise the Lord, and you have the quickening power, you have the word which has the quickening power, और आपके पास वो वचन होता है जिसमें जीवित करने वाली सामर्थ होती है, and in your life, through your life, और आपके जीवन से और जीवन के द्वारा, in your church, through your church, अपनी कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा, the word of God which has quickening power, और जो परमेश्वर का वचन जिसमें जीवित करने वाला सामर्थ है, and the Holy Spirit who has the quickening power, और पवित्र आत्मा जिसमें जीवित करने वाली सामर्थ है, they bring back the dry bones to life. वो सूखी हड्डियों को वापस जीवित करता है। Hallelujah. हालेलुया। Our church will become an army of God. तो हमारी कलीसिया एक बड़ी सेना हो जाएगी, We all become like a great army of God. और हम सब एक बड़ी सेना हो And जाएंगे, everybody will proclaim the word of और God. हर कोई परमेश्वर के वचन का घोषणा करेगा। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, this is opportunity for you and me. ये आपके लिए एक मौका है, Or let me say, this is high time for us या फिर मैं ऐसे कहूँ कि अब ऐसा समय आ गया है to proclaim the word of God, कि हम परमेश्वर के वचन को घोषणा करें, which has got the quickening power जिसमें वो जीवित करने वाली सामर्थ by being है, filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरे जाए, who had the quickening power, जिसमें वो जीवित करने वाली सामर्थ है, so that the dry bones all around us, कि वो सूखी हड्डियां जो हमारे चारों ओर है, people without hope in this world, और जो लोग बिना आशा के हैं संसार people in में, the world without God, जो लोग परमेश्वर के बिना हैं, so that they can hear the word of God. कि वो परमेश्वर के वचन को सुन सके। And when we pray for them, और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, Jesus becomes real to them. तो यीशु उनके लिए वो सच्चा साबित होता है। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना Shall we close our चाहूँगा। eyes and bow our heads? अपने आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में thank you for your word. धन्यवाद आपके वचन के लिए। Lord, you have given us the word परमेश्वर आपने अपने वचन को हमें दिया है, which has the quickening power in it. जिसमें जीवित करने वाला सामर्थ है। You have anointed us with the Holy Spirit. आपने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, And all my brothers and sisters who have not yet been filled with the Holy Spirit, और जो सारे भाई बहन जो अभी तक पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए हैं, Lord, the promise of the Holy Spirit is for them. और पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा उनके लिए है। I pray, dear Lord God, touch them and fill them with the Holy Spirit. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें स्पर्श दे और पवित्र आत्मा से भर दे। Make us all thirsty, hungry for your Spirit, for your word. और हम सभी को आपके वचन के लिए वो भूख को दे, वो प्यास को दे। Lord Jesus, you want to take us to the valleys प्रभु यीशु आप हमें उस घाटी में लेकर जाना चाहते हैं which are filled with the dry bones. जो सूखी हड्डियों से भरी You हुई want to है। take us to the people
आप हमें उन लोगों तक लेकर जाना चाहते who are हैं like dry bones, जो सूखी हड्डियों के जैसे who are हैं, saying we have no hope, जो कह रहे हैं कि हमारे पास आशा नहीं we है, are cut off, हम तो पूरी रीति से कट गए we हैं, do not know what will happen tomorrow with us. हमें नहीं पता हमारे साथ कल क्या होगा। Lord, they need to hear your good news. प्रभु उनको आपके सुसमाचार को They need to सुनना hear है। that God loves them. Jesus had died for them. उन्हें सुनना है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और यीशु उनके लिए मारा गया, They can have a new hope. कि वो नया आशा को प्राप्त करे, They can be restored back to life. कि वो वापस जीवित हो जाए Yeah, they can have eternal life. और वो इटर्नल जीवन को वो पा सके। Yes, Lord, this will happen only when your church, your children proclaim the word of God. और ये तभी होगा जब आपके बच्चे और कलीसिया आपके वचन की घोषणा Lord, करेंगे। we all need the power of the Holy Spirit. प्रभु हम सभी को पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। Give us grace, O Lord. हमें अनुग्रह करे, Give us grace, O Lord. हमें अनुग्रह करे, So that we will also bring the message of hope and restoration and life. कि हम परमेश्वर आपकी आशा, आपके पुनर्स्थापना और जीवन के संदेश को हम भी लेकर आए। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद यीशु for your word to us. आपके वचन के लिए। Also, I pray for all my brothers and sisters who are watching us right now. और मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमें देख रहे हैं, I pray for all who have joined us today in this worship service. और जो भी आज की आराधना की सेवकाई में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Dear Lord, please stretch out your mighty hands and touch them and bless them. प्रिय प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए, उन्हें स्पर्श दीजिए और उन्हें छूइए। Lord, you know all their needs, आप उनके सारे आवश्यकता को their जानते spiritual हैं, needs, उनके आत्मिक their आवश्यकता को, emotional needs, उनकी भावनात्मक आवश्यकता को, their material needs and financial needs, और उनके सारे भौतिक और सारे आर्थिक आवश्यकता को आप जानते their हैं, relational needs. और उनके संबंध की आवश्यकता को। You are our good God. आप तो अच्छे परमेश्वर हैं, You are a Jehovah Jireh God. आप तो हमारे यहोवा यीरे परमेश्वर हैं, You, Lord, you are a Jehovah Rapha, a healer. आप तो हमारे यहोवा रफ़ा, हमारे चंगाई करता है। Bible says, by your stripes we have been healed. बाइबल कहती है कि आपके कोरे खाने से हम चंगे हुए हैं। Bible says you supply all our needs. बाइबल कहती है कि आप हमारे सारे आवश्यकता को पूरा करते हैं। Lord, you are the Lord God who opens up new doors to your children. आप वो प्रभु परमेश्वर है जो अपने बच्चों के लिए नए द्वारों को खोलते हैं। Would you please bless your children right now, O Lord? प्रिय प्रभु अभी अपने बच्चों को आप स्पर्श दे, Touch them, O Lord. उन्हें छुइए। They're crying out to you. वो आपको रो पुकार रहे They're हैं, praying to you. वो प्रार्थना कर रहे हैं। Lord, build up their faith प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाइए and bless them. और उनको आशीष दे। I destroy the work of the devil in their lives right now. और शैतान के सारे कामों को उनके जीवन से अभी मैं नष्ट I करता हूँ। rebuke the sickness in their bodies. और उनके पूरे बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ कि वो I निकल rebuke जाए। every demonic power over their life. और शैतान के सारे सामर्थ को मैं डांटता हूँ I break every demonic power over their life. और उनके जीवन के हर एक वो शैतानी सामर्थ को मैं नाश करता I हूँ। set your children free from every bondage. और हर एक बंधन से मैं आपके बच्चों को स्वतंत्र करता Spirit हूँ। of fear, I cast you out of God's children. और हर एक भय की आत्मा को आपके बच्चों से मैं निकालता हूँ। Father God, you have not given a spirit of fear, परमेश्वर पिता, आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, but you have given a spirit of power and love and self-control. पर आपने तो हमें प्रेम की, आशा का और संयम की आत्मा दी है। Father God, bless your children. पिता परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष दे। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद परमेश्वर, for reviving us, हमें फिर से ताज़ा करने के लिए, restoring us, हमें पुनर्स्थापन करने के लिए giving us new hope. और नया आशा देने के लिए। Christ is in us, the hope of glory. और मसीह जो हम में है वो महिमा की आशा है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, Give you glory and honor. हम आपको आदर और महिमा देते हैं In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे Share the grace together. और हम अनुग्रह को एक साथ बोलेंगे। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.